آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر. تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے. جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں. تو بڑا اچھا عمل ہے یہ. تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا یہ پڑھا کریں. کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ. عامر محمد یوسف پنجگور بلوچستان سے. دیکھیں حرکت نماز کے منافی ہے اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے. یہ تو ایک اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے. تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی. تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں. تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی
تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. بعض فقہا اس کے قائل ہے اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ دونوں قول ملتے ہیں. گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے, بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے, تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے. اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کی, وہ قول سخت بہت ہے, اس میں مشکل بہت ہے, لیکن احتیاط اسی میں. تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کرے تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے, ہلے اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے گی. تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو, تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی. ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے, تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ, اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے, تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے, لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو ایک دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے, لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا, یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے. یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے, لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے. فرمایا ماذا یاتیہم من ذکر من ربہم, جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے, استمعوہ, یہ اسے سنتے بھی ہیں, وہم یلعبون, لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے. تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا, پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون, جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخ و پکار شروع کی انہوں نے. ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا, جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے. ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں, وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے. اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں, میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں, تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو. دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا, یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے, یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, نکاح, وراثت, طلاق, خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, بے پردگی, زنا, چوری, یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن,
ये किसका टॉपिक है भाई? बोल लो यार, ये डॉक्टरों का है। पूरे पूरे 4-4 साल पढ़ते हैं लोग, 6-6 साल पढ़ते हैं, फिर पागलों पे प्रैक्टिस करते हैं, या तो खुद पागल हो जाते हैं या बहुत सारे पागलों को ठीक कर देते हैं। तो वो कब बेवकूफ़ है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे होते हैं? शऊर तहत शऊर, वो देखा होगा ना नफ्सियात की किताबों में आपने, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये पूरी जिंदगी उनकी इसी बहस में गुजरती है। तो मैं फिर इस पे इतना क्यों बोलता हूँ? अक्सर मेरे बयान में आ रहा होता है भाई ये डिप्रेशन का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये जो डिप्रेशन आजकल फैली हुई है और जो स्ट्रेस आजकल फैली हुई है, ये 99% हुब्बे दुनिया का नतीजा है। समझता है बात को कि नहीं समझता? एक टेंशन वो होती है, आप वाकई किसी टेंशन में हो, सच्ची मुच्ची की टेंशन है, उस टेंशन से निकलने के लिए आप डॉक्टर से राब्ता कर रहे हो। वो टेंशन डॉक्टर का टॉपिक हो सकता है, बल्कि है वो, मैं ये मानता हूं कि वो किसका मौजू है, उसके पास सही गाइडेंस है या नहीं, ये मैं बाद में बात करूंगा। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंशंस। टेंशंस की कितनी किस्में हैं? 2। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। अभी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त। उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है, फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा, 35 या 34। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता, जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है, अचानक आपके दोस्त आ जाएं तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा, फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी, फीलिंग बढ़ जाएगी आपकी। बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी। कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है, बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है, 35 लग रहा होता है। तो मैंने ये लतीफ़ा बराए लतीफ़ा नहीं सुनाया, बाज दफा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है। वो अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर लें, बाज दफा होती नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको, समझते हो, बिला वजह की, कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है। 3 दर्जात हैं, एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है, या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर, टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है, 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग। तो अब तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है, 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है, 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी पता है क्या है, अब यहाँ मैंने जो मिसाल दी है ना, उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री हैं, महसूस कितनी हो रही हैं, 35। ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है, 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है, स्ट्रेस में जा रहा है, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे हैं, इस कैटेगरी में हैं। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं,
महसूस क्या हो रहा है उनको, टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई, ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था, नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया, जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं। सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता, अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने, अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया, अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था। तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था। इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, इतनी टेंशन में आया, बोले ये क्या है यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं। और याद रखो, मुझे बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं। टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए, गुस्से में आए और एकदम सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं, गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें दे के गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो। और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाएं तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा, भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है, वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएंगे। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं है। तलाक़ें देते कि बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे, समझते हो कि नहीं समझते। जबान पे काबू रखा करो, उससे मैं अपने आप पे कंट्रोल किया। बच्चे की जब शादी हो ना, शादी से पहले बता दो तलाक का लफ्ज़ जबान से मजाक में भी निकाला थप्पड़ आएगा, उसको पहले बता दो। सर फाड़ दिया ना, उसकी तलाफी हो सकती है, टांके लग जाएंगे, जुड़ जाएगा दोबारा। मैंने बहुत से लोग देखे उनका सर खुल गया था, डॉक्टरों ने एल्फी से जोड़ दिया। वो एओ क्लिनिक में एक आदमी की टांग कट के अलग हो गई थी। एओ क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह मगफिरत करे, इंतकाल हो गया, उन्होंने पूरी टांग जोड़ दी, दोबारा पूरी कट के अलग हो गई। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सर फोड़ दें, एओ क्लिनिक में इम्कान है कि एल्फी से या समत बॉन्ड से जोड़ दे वो, लेकिन तलाकें देने के बाद एओ क्लिनिक में रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। लोग कहते हैं एओ क्लिनिक क्या है, कराची से बाहर वालों। एओ क्लिनिक जो है हड्डियों का एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहां टूटी हुई हड्डियां जोड़ी जाती हैं। तो टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, 3 तलाकों के बाद टूटा हुआ रिश्ता बोलो नहीं जुड़ सकता। तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि लोग कहते हैं मुफ्ती साहब टेंशन पे बयान करते हैं। ये किसका टॉपिक है भाई, नफ्सियाती डॉक्टरों का। तो 2 चीजें हैं, नंबर 1 ये नफ्सियाती डॉक्टरों का टॉपिक है, मैं मानता हूं, वो तो पढ़े ही यही हैं, लेकिन पहले ये किसका टॉपिक है, मजहब का। क्योंकि आज टेम्परेचर 0 से नीचे गया हुआ है और आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब आपकी ऊपर की खोपड़ी सेट नहीं है। तो शुक्र की तमाम चीजें, तमाम किस्म की नेमतें आपके पास मौजूद हैं और आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आप नाशुक्रे हो। इस नाशुक्री की वजह से जो आपको टेंशन होगी, इस टेंशन में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। आज जो लोग परेशान है ना, मैं परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान, वो समझता है मैं परेशानियों में मेरी जिंदगी गुजर रही है तो बहुत सवाब मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको। आपको खुश होना था, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, कमबख्त तुझे तो खुशी भरी जिंदगी दी थी, तू तो नाशुक्र है। तू ये देख रहा है मुझे क्या क्या नहीं मिला, ये नहीं देख रहा कि क्या क्या मिला हुआ है। बताओ शैतान जो टेंशन में आया था, पहले बताओ शैतान टेंशन में आया था कि नहीं आया था।
جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ایک دم غصے میں بھی آیا، ٹینشن میں بھی آیا، تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے نا حدیث میں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا، وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں، میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی، نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی، میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا، تو نے صبر کیا، فلاں موقع پہ غم پہنچا، ناشکری نہیں کی، تو نے صبر کیا، تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا، وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا، غلط بات پہ آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں، سبب ہے نہیں، ایویں تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے۔ غریب ہو ایسے ہو تم، غریب ہو فلانے ہو تم، غریب ہو ڈمکانے ہو تم، تو غریب ہے غربت دور نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے، اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت، یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ، پہلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے، اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں، لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے۔ سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے۔ اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ۔ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں، تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے۔ ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے۔ خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے۔ اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا۔ اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا، اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا، کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے، اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے۔ سوچو اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں، شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے، گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے، کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں، ڈپریشن میں گیا ہو۔ باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے۔ آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے۔ تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے، کوئی کاٹ رہا تھا اس کو، کتنا غم کتنا غم کتنا غم۔ اس غم میں پہلی بات
शैतान को सवाब नहीं मिल रहा था और गुनाह मिल रहा था, एक बात। नंबर 2, उस गम में शैतान को ना सिर्फ ये कि सवाब नहीं मिल रहा था बल्कि गुनाह मिल रहा था। दूसरा नुकसान उस टेंशन का, ये मैं उस टेंशन के नुकसानात बता रहा हूं जो गलत होती है, जो होनी नहीं चाहिए। मौका शुक्र का हो और आप जा किस में रहे हो, टेंशन में। फिर मैं बताऊंगा आज भी यही हो रहा है मार्केट में जो आज टेंशन चल रही है ना, वो यही वाली चल रही है। और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था, क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था, गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज़ दफ़ा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने बोलो पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे हैं। इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए, इंसान के बच्चे। जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चले। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से। शैतान ने क्या किया, इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप घुल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आज जो लोगों को टेंशन हो रही है ना, वो हुब्बे दुनिया की वजह से हो रही है। शैतान में क्या था, वो ये देख रहा है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं, वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली। ये नहीं देख रहा कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई हैं। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूं अल्लाह की नजर में। मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, मैं 21वें का क्यों। अबे तू ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं। वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है, आर्नल्ड है, क्या नाम है उसका, जो बॉडी बिल्डर आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसी क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तू शुगर अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने इन लाखों लोगों पे फजीलत दी है, तू मुकाबला कर रहा है आर्नल्ड से। हर आदमी अपने आप को अपने से बड़े से कंपेयर कर रहा है, हालांकि उससे छोटे लाखों नहीं है, करोड़ों हैं जिन पर अल्लाह ने इसको फजीलत दी है। ये कमबख्त इस पे रो रहा है कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि बहुत से लोग किराए पे भी नहीं रहते, जाओ छपड़ों में जाके, रोडों पे जाके देखो, पड़े हुए हैं। ये नाशुक्री है। ये ऐसे है कि शुक्र का मौका था और टेंशन ले रहा है। इसका मतलब 0 से भी टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है और इसको गर्मी लग रही है। इसको हीटर लगाना था और ये एयर कंडीशन की बातें कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मौका था हीटर लगाने का, ठंड हो रही है, और ये क्या तलाश कर रहा है, कह रहे मेरे पास एयर कंडीशन के पैसे नहीं है। ओ भाई तू हीटर नहीं है, इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर तू। आज मेजॉरिटी को जो टेंशन है ना, वो इस बेस पे है। फिर कहते हैं खुशियां ही नहीं है जिंदगी में। तो मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियां नहीं है ना, इस पे ये ना समझो कि इस पे अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि चलो दुनिया में बेचारा गमज़दा है तो आखिरत में क्या दे दूंगा मैं इसको खुशियां। मैंने कहा तुम्हें ना दुनिया में मिली ना आखिरत में, ना दुनिया में खुशियां मिलेंगी और आखिरत में भी क्या होगे, महरूम। अल्लाह कहेगा मौका खुशी का था और तू मना क्या रहा है, गम। हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह सर्दी वाला टेम्परेचर कब शुरू होता है, सही है ना,
کہ हमें उस वक्त सर्दी लगनी चाहिए। भाई देखो, दोबारा मिसाल समझा देता हूँ। 26 डिग्री जब होता है ना टेम्परेचर, तो भी इंसान को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है। लोग नॉर्मली एसी का टेम्परेचर कितना रखते हैं? बोलो ना, 26 या 28। बहुत कोई साइबेरिया से आया तो 18 पे ले आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग हमारी गाड़ी में बैठे 18 पे करके चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं ठिठर गया, मैं वहीं का वहीं, मैं उतर ही नहीं पा रहा गाड़ी से, जम गया। हर तरह के लोग होते हैं ना। कुछ को ऐसा होता है कि वो उनको 28 भी बहुत सर्दी लग रही होती है। ये गुटके वाले का टेम्परेचर होता है ये। लेकिन नॉर्मली हम जब डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक शरीफ इंसान को किस टेम्परेचर में ईजी फील करता है वो, तो आमतौर पे नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं भाई 26 एक ऐसा टेम्परेचर है, या 28, 26 से 28, इसमें इंसान क्या फील करता है? बोलो ना, ईजी। अब इसमें अगर कोई ईजी फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कोई फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर किसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो उसको तो हो सकता है 30 में भी सर्दी लग रही हो, 30 टेम्परेचर सर्दी लग रही है। तो ये एसी का या टेम्परेचर का फॉल्ट नहीं है, ये इसका बोलो अपना फॉल्ट है। यहां तक बात आ गई है दिमाग शरीफ में? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियाँ ने भी ना एक मैयार रखा है कि ये नेमतें जिसके पास हैं उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब ये पागल है। इसका मतलब क्या है? इसका दिमाग क्या हो गया है? खराब। तो वो कितने डिग्री खुशियां मिले कि आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको सर्दी लगनी चाहिए, और कितने डिग्री टेम्परेचर हो तो गर्मी लगनी चाहिए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डिग्री बता दी हमें कि जिसको 3 चीजें मिल गई ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुशियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब इसको खुश रहना चाहिए, इसके चेहरे से पता चले कि ये खुश है। वो क्या है? नंबर 1, 2 वक्त का खाना। कितना भाई? 2 वक्त का खाना, बिलफेल हो या बिलकुवा हो। ये थोड़ी अरबी है, मैं इसको उर्दू में समझा देता हूँ। इस्तिलाह है। बिलकुवा का मतलब आप रात को सोए, आपको पता है किचन में कल का खाना 2 टाइम का, मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, या जो मेरे जेरे कफालत हैं, बूढ़े माँ बाप भी उसमें दाखिल कर लें, उन सब का 2 टाइम का खाना मेरे पास क्या है? बोलो, मौजूद है। इसको कहते हैं बिलफेल मौजूद है। बिलकुवा का मतलब यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ और पाँव सलामत हैं। सुबह कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी जिससे मैं 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर लूंगा। इसको कहते हैं बिलकुवा। हम प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन 2 हाथ और 2 पाँव सलामत हैं। इतनी अल्लाह ने एबिलिटी, काबिलियत रखी है कि आप 2 टाइम के खाने का कल इंतजाम कर लोगे, परसों का नहीं, बस कल तक का। इसके बाद अगर खाने की टेंशन ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये आपका अपना, बोलो अबे बोलते क्यों नहीं, ये आपका अपना फॉल्ट है। आगे जब जो कुछ है ना वो गरीबियां हैं कि बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हुए 1 साल के लिए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बहरिया टाउन में, ये गरीबियां। होटल में जब आप जाते हो तो कीमत प्लेट की देते हो। गरीबी एक एहसान होता है होटल वाले की तरफ से, दे दे ठीक है, नहीं दे तो टेंशन नहीं लेता इंसान। ले रहा है तो इसका मतलब नदीदा है, हवस का मरीज है। और कुछ लोग गरीबी पहले मंगवाते हैं, 8-10 गरीबियों के बाद खाना मंगवा रहे होंगे वो। जैसे एक आदमी होटल में गया ना कि वो रोटी कितने की, उसने कहा 20 रुपए की। अच्छा भाई सालन कितने का, पता नहीं रोटी सालन कितने का जी, इतने का। और रायता, उसने कहा रायता फ्री है, तो कहा 10 रायते ले आओ, खाली 10 क्या ले आओ? रायते ले आओ। 2 टाइम का खाना। तभी ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना भी जायज नहीं है, खाने के लिए भीख मांगना जायज नहीं है। सुबह उठा, हाथ पांव सलामत है, बेलचा गेती हाथ में है, टमाटर की रेडी है उसके पास, टमाटर बेच के कमा सकता है, उसके लिए हाथ फैलाना किसी के सामने खाने की जरूरत के लिए जायज, बोलो नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दिया उसके पास रिस्क बहुत है। नंबर 2, रिहाइश। रिहाइश में यह है कि ऐसा रात गुजारने के लिए घर मुयस्सर हो जाए जहां वो सुकून की नींद खुद भी सो सके और उसके बीवी बच्चे और जो उसकी जेरे कफालत हैं वो भी इज्जत के साथ 4 दीवारी में, बोलो, सो सके। चाहे अपना हो, चाहे किराए पर हो, चाहे किसी ने ज़कात में दिया हो। समझते हो कि नहीं समझते? अब घर की बुनियादी जरूरत क्या हो गई? जैसे परिंदे का घोंसला होता है ना, परिंदों का घोंसला होता है, उसमें वो तूफान से, आंधी से बचने का इंतजाम होता है, तो ऐसा इंतजाम हो घर के अंदर। आजकल तो पैसा लगा के लोग अपने घरों को बिगाड़ते हैं। चारों तरफ से पैक घर, ना कोई खुला सहन है, ना कोई हवा है, ना कोई कच्ची जगह है जहाँ इंसान कोई पौधे शौधे लगा ले, बस पूरा पैक कर दिया उसको करोड़ों रुपए लगा के, बेड़ा ही गर्क कर दिया। बस इस पे लोग खुश होते हैं, अंदर से लोग आएंगे यार क्या जबरदस्त, इससे तो वो गाँव का घर छपड़ा अच्छा है मेरे भाई, मुझे तो छपड़ों में जाके सुकून मिलता है गाँव देहातों में।
وہ ज़्यादा अच्छे छपड़े जहाँ मंजी डाल के बैठ जाओ, नीचे से भी हवा लगेगी आपको। मंजी में यही फ़ायदा होता है, हवा नीचे से भी लगती है, बेड में एक तरफ से हवा लगेगी आप। अच्छा खैर, ये फिर ज़्यादा ऊपर के लेवल की बातें हो जाएंगी। तो घर का इंतज़ाम। तीसरा इंतज़ाम, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज। लिबास भी दाखिल है इसमें, नान नफ़क़े में लिबास का भी इंतज़ाम हो कि आदमी सतर छुपा सके, प्रॉपर ड्रेस हो, इज्जत के साथ कहीं आ जा सके। और चौथी चीज़ है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज। ये छोटी मोटी छींकें, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, मेरे हर तरह के लोगों से वास्ता होता है ना। आखान के बहुत सीनियर डॉक्टर से मेरी सफ़र में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा नज़ला ज़ुकाम खांसी, उन्होंने कहा WHO की तरफ से ना ऐसा आदमी जो छींकता है, खांसता है, नज़ला हो जाता है साल में एक आध दफ़ा, उसका शुमार बीमार लोगों में बोलो नहीं होता, बल्कि जिसको कभी भी नज़ला नहीं होता वो बीमार है। कमाल की बात है या नहीं है? उन्होंने कहा जो वायरल फैलते हैं ना, जो वायरस फैलते हैं ना, जो वायरल बीमारियां नहीं होती कि अभी ये चल रहा है तो वो चल रहा है तो फलाना, आजकल कराची में आंखें आई हुई है ना, तो ये वायरल बीमारियों में बीमार होना ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बढ़ता है, और ये अपना टाइम पूरा करके निकल लेती हैं। तो ये चीज़ें बीमारियों में शामिल नहीं है। बड़ी बीमारी से महफूज हो जिससे तकलीफ हो रही है आपको। नज़ले में तो आपको थोड़ी, सामने वाले को तकलीफ होती है जिस पे छींकते हो आप, और जो बलगम के बड़े बड़े थपेड़े आप वजू खाने में फेंकते हैं तो उनको तकलीफ होती है, आपको थोड़ी होती है। ज़्यादा कह गया मैं शायद। तो बड़ी बीमारी से बॉडी क्या हो, महफूज। तो जिसको ये नेमतें मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के उसके कदमों में डाल दी है। बेशक उसके पास बीकन हाउस और सिटी स्कूल की फीसों के पैसे नहीं हो। आप कहोगे फिर बड़ा आदमी कैसे बनेगा? जब इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? अगर बच्चे को आपने दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकाली मेरे भाई, तो फिर इन स्कूलों से पढ़ के वो बड़ा इंसानों की नज़र में बनेगा, अल्लाह की नज़र में वो कारून और फिरौन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कारून और फिरौन। उस जमाने में जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी, लोग कहते थे मूसा कलीमुल्लाह माज़अल्लाह छोटे आदमी है, और बड़ा कौन है? कारून है। एजुकेटेड कौन है? कारून। उसको बिजनेस करना आता है, बिजनेस सिखाता था वो लोगों को। बड़ा कौन है? फिरौन है। तभी मूसा कलीमुल्लाह को ये ताने दिए जाते थे। फिरौन भी कहता था अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, मैं बेहतर हूं या ये? और उनको माज़अल्लाह कहता था ये जो कमतर है, ये सवाल करता था कि ये इतने कमतर आदमी है तो इनसे मुझे कैसे कंपेयर कर रहे हो? फिरौन को पता नहीं था तू जिसको कमतर कह रहा है, गुर्बत की वजह से तू 100 दफा मर के पैदा हो जाए तो मूसा कलीमुल्लाह की खाक के बराबर भी नहीं है। लोगों की नजर में बड़े और बुरे को मत देखो। लोग तो कहते हैं 20वें ग्रेड का ऑफिसर बड़ा है, अल्लाह कहते हैं नहीं। अल्लाह कहते हैं जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, आखिरत की फिक्र में लगा हुआ है, वो बड़ा है। ये जितने बड़े बड़े आज नजर आ रहे हैं ना, मरने के बाद सारे छोटे हो जाएंगे। 4 दिन की 2 टके की जिंदगी नहीं है यार। इस गाड़ी पे, इस बंगलों पे तुम फख्र कर रहे हो। जब आपको 3 बड़ी नेमतें अल्लाह की तरफ से मिल गई, रिहाइश, खुराक और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, फिर अगर आप टेंशन ले रहे हो इसके बाद भी, तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। इस टेंशन पे आपको सवाब भी नहीं मिलेगा, और इस टेंशन पे उल्टा गुनाह मिलेगा, नाशुक्री का गुनाह मिलेगा कि इतनी नेमतें दी हैं उसको नहीं देख रहा, जो चीज नहीं है उसको देख रहा है। नहीं तो फिर बहुत कुछ है, और सवाब भी नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। और तीसरा, फैसले भी गलत करोगे आप। वो गलत फैसले क्या होंगे? जब आप डिप्रेशन, टेंशन में जाओगे, आप कोशिश होगी यार किसी तरह से आ जाए, पैसा आ जाए, इज्जत मिल जाए। इज्जत चाहने के लिए नाजायज रास्ते इख्तियार करोगे, जिससे थोड़ी सी इज्जत आएगी, जो लेकिन हकीकत में जो थोड़ी बहुत है रह गई है ना, वो भी जाएगी। हलाल से बच के हराम की तरफ जाओगे, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करोगे। आज पता है क्या हो रहा है? पहले जमाने में लोग हराम बिजनेस करते थे, शर्मिंदा होते थे, अल्लाह हम गलत कर रहे हैं, उलमा कह रहे हैं कि ये बिजनेस जायज नहीं है, हमें माफ कर दे। अब पता है क्या हो रहा है? अब जिसने हराम बिजनेस करना होता है ना, वो मौलवियों पे क्लिप बनाना शुरू कर देता है कि मौलवियों के बिजनेस का क्या पता। ड्रॉप शिपिंग में वो उलमा बताते हैं ना, ये तरीका जायज है, ये तरीका नाजायज है। अब जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग को प्रोमोट करना है, तो मौलवी कबाब में हड्डी बनेगा कि नहीं बनेगा उनके लिए? जब ये इंश्योरेंस कंपनी आई ना पाकिस्तान में, उलमा ने सब ने फतवा दिया ये हराम है, नाजायज है। अब इंश्योरेंस कंपनियों वालों का तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब को फॉलो करने वाले लोग कम नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा यार ये तो उलमा, कोई भी आलिम जायज नहीं कहता। वो सऊदी अरब गए, उन्होंने भी फतवा दिया नाजायज। मुझे याद है उन जमाने में हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बहस करने के लिए आते थे, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर आया करते थे, जो भी इनके
इनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो इस कंपनियों को प्रमोट करने का काम उनके जिम्मे लगा हुआ है, उनको इसका कमीशन मिलता है, वो लोग आते थे, बहस करते थे हजरत से, इसमें नाजायज वाली कौन सी बात है, बहस करते थे ना। हजरत फरमाते हैं गरर है भाई, कि गरर क्या होता है, फिर उनको बताओ गरर ये होता है, हदीस क्या है, हदीस बता दी उनको, फिर भी नहीं मानते थे। फिर हजरत उनसे कहते थे उलमा का काम मसला बताना है, मनवाना नहीं है, हमें मजबूर ना करें कि हम हराम को हलाल कहते हैं, आपको जो चाहे करना है करो। फिर वो क्या करते थे, फिर उलमा, अबे ये मौलवी ऐसे, ये जो मौलवियों पे क्लिप बहुत बन रहे हैं ना, इनका बुनियादी मकसद मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ क्लिप बनाना होता है। डायरेक्ट इस्लाम को हिट नहीं कर सकते तो मौलवियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और जिन मौलवी जो 2 नंबर मौलवी होते नहीं है, वो हर आदमी पगड़ी टोपी पहन के थोड़ी मौलवी बन जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में जब उलमा कहते हैं भाई ये तरीका नाजायज है, ये वाला जायज है, ये नाजायज है, ऑल्टरनेट भी बताते हैं, तो जाहिर है रुकावटें बनती है ना। तो तीसरी गलती, डिप्रेशन के मरीज क्या करते हैं, जो पैसों की डिप्रेशन है, जिनको उन्होंने करोड़पति बनना है, शुक्र अदा नहीं कर रहे कि जितना अल्लाह ने दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हलाल तरीके से ज्यादा की भी कोशिश करें। लेकिन वो टेंशन में जब जाते हैं तो बजाय शुक्र करने के, टेंशन खत्म करने के, उलमा के खिलाफ क्लिपबाजी शुरू कर देते कि ये हलाल है, ये बोल, मौलवियों को क्या पता ड्रॉप शिपिंग का, ब्लॉक चेन का, मौलवियों का क्या पता, इसमें क्या खराबी है। मौलवी यही तो पढ़ता रहा है मदरसों में बैठ के मेरे भाई, खरीदो फरोख्त के शरई हकाम ही तो पढ़ता रहे वो बैठ के। तो गलत फैसले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जो भी नाजायज से बचता है ना, अब निकाह कर नहीं रहे, हैंड प्रैक्टिस के हलाल होने के फतवे तलाश कर रहे हैं कि इसमें क्या खराबी है। जब भी इंसान कोई बुराई करता है ना, अगर उससे तौबा ना करें तो फिर उसके जवाब में और बड़ी बुराइयों में लग जाता है, वो और बड़ी बुराइयों में लग जाता है। आप डिप्रेशन के मरीज हो, बाप से बदतमीजी करते हो, होना ये चाहिए कि बाप के एहसानात सोच के, माँ के एहसानात सोच के, उसके बचपन के एहसानात सोचो। ये देखो, ये घर मेरे बाप ने दिया हुआ है मुझे, सारी जिंदगी उसने ठिकाना दिया, मेरी पढ़ाई पे खर्च किया। अब अगर वो बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है, तो उसकी सारी नेकियां खत्म थोड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जुल्म अगर उसने कर भी लिया तो उसकी नाइंसाफियां कम है, इंसाफियां ज्यादा हैं। तो ये सोच के शुक्र अदा करे, हंस के खेले बाप की तकलीफ को, बाप की मार को हंस के बर्दाश्त करे। लेकिन वो शुक्र गुजारी नहीं, नाशुक्री है। वो समझता है कि मेरा बाप जालिम है, तो उस नाशुक्री पे टेंशन में जाएगा, टेंशन में जाके अल्लाह का गजब, और फिर गलत फैसला। वो गलत फैसला क्या है कि बाप को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इससे अल्लाह का और कहर और गजब आता है उसके ऊपर, और ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में जाता है। अगर वो थोड़ा ये सोच लेता कि मेरी माँ और मेरे बाप के एहसानात उनके जुल्म से कई गुना ज्यादा हैं, लिहाजा इस मौके पे चीखना बनता नहीं है, सबर बनता है, तो सबर कर लेता, अल्लाह की नजर में भी मुकद्दस बन जाता, माँ बाप की नजर में भी मुकद्दस बन जाता। तो हर गलत टेंशन में इंसान के फैसले क्या होते हैं, बोलो, गलत होते हैं वो। तो सबसे बड़ा मसला नाशुक्री का है, और जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, नाशुक्री का उनसर खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप समझते हो यही रहना है, तो मेरे भाई अगर हमने दुनिया में ही रहना है तो जिसके पास बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं है उसको खुदकुशी करके मर जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने दुनिया से जाना है थोड़े दिनों के बाद, और ये भी नहीं पता आज जाना है, कल जाना है, असर में होंगे या नहीं होंगे, मगरिब में होंगे नहीं होंगे, 10 साल के बाद जाना है, पता ही ना हो, तो मेरे भाई एक छपड़ा भी अगर मिल जाए ना रहने के लिए, और मेरी अल्लाह से चाहती है कि अल्लाह मुझे छपड़ा ऐसा मिले जहां गाय दुम हिला रही हो खड़ी भी, इसका अपना ही मजा है। गाँव का एक मंजर होता है ना, एक छपड़ा मिल जाए, साफ सुथरा हो और सुकून की जिंदगी हो वहां पे। आप कह सकते हो मुसाफिर छपड़े में जाके रहो, शहर में क्यों रह रहे हो? शहर में इसलिए नहीं, काम ज्यादा है यहाँ पे। मैं छपड़े में जाके रहूंगा तो तुम लोग बयान सुनने छपड़े में आओगे। तो शहर में इसलिए रहना पड़ता है कि वहां क्या है, काम, थोड़ी मेहनत, आउटपुट उसका बहुत ज्यादा होता है, इस मजबूरी से रहता है इंसान। वरना मैं तो छपड़ों में जाके ही रहता, मंजी पे जाता, भिंडी खाता गाँव देहात की। ये जो होटल होते हैं ना छपड़े के, इनकी दाल खाओ, मजा ना आए, पैसे वापस। खैर, तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं मेरे भाई, सुकून, इत्मीनान दिया है, तो सोच सोच के खुशियां मनाया करो, टेंशनें ना लिया करो। आप बोला करो, अल्लाह एक छपड़े से मैं किसी गांव में होता, किसी झोंपड़े में, मेरी जरूरत पूरी हो गई, लेकिन तूने मुझ पर एहसान करके मुझे शहर में जिंदगी दी, शहर में जिंदगी दी मुझे तूने, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए अल्लाह, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, तूने मुझे किराए पे घर दे दिया, किराया देने की ताकत मुझ में रख दी है। ए अल्लाह, बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि इलेक्ट्रिक वाले बिल काट के चले गए। ए अल्लाह, बहुत से लोग मैंने करंट से मरते हुए देखे हैं, मेरे लिए अब करंट से मरने का चांस तूने हमेशा के लिए, बोलो, खत्म कर। ये तो खैर एक मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बिजली काट के चले गए, टेंशन नहीं लेनी भाई,
سو جاؤ ایسے ہی, تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی, پھر عادی ہو جاؤ گے. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو وداؤٹ بجلی جی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کوئی اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو. انہیں جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے, وہ سن لیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے.